Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 5 from CBSE course from unit number 7, and the name of the prose is Gulliver's Travels, adapted from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. हम पढ़ने वाले हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स, यानी एक इंसान जिसका नाम था गुलिवर और उसके जर्नी के बारे में हम इस प्रोज में जानेंगे. सो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोज इज गुलिवर एंड हिज फ्रेंड्स वंस अराइव at a land and go there in search of water as commanded by the captain, but they were unable to find out water there. On their return, they were chased by a giant creature. Gulliver was left behind in that land, and he was watching his friends rowing the boat towards their ship, leaving behind the giant creature. Gulliver now found that all the inhabitants in this place were very giant. They had huge bodies compared to others. Now he tries to hide himself in the hedges of barley and corn fields. What happens then is one of the farmers suddenly recognizes him when he comes there to harvest the crop. He screams when the giant farmer picks him up using his thumb and forefinger. All his giant farmer friends also watch him. Gulliver tries to speak out in many different languages to the giant farmer who had held him in his hand. But the farmer was unable to understand anything. What happens then is he takes him to his home and places him at some distance on the dining table. The farmer's wife then crumbles small pieces of bread and places that bread in front of Gulliver. Later on, the farmer's wife puts him on her own bed and covers him with a clean white handkerchief, where he sleeps and dreams about of his home, wife and children. So, let us learn this prose in detail. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. So, when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी. अगर सुभाष चंद्र बोस जी खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में खुद एक बुक लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. ऑटो मतलब ओन, खुद से लिखना. तो व्हेन सम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज राइट अ बुक ऑन देमसेल्व्स, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. और बायोग्राफी क्या होता है? मान लीजिए सुभाष चंद्र जी एक फेमस पर्सनालिटी है और मैं उनके जीवन के बारे में एक बुक लिखूंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका स्कूलिंग कहाँ के हुआ था, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें किया, देश के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया. तो जब मैं एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में जब कोई और इंसान लिखता है तो वो हो जाता है बायोग्राफी. जब एक फेमस पर्सन खुद के बारे में एक बुक लिखता है तो उसका मतलब हो जाता है ऑटोबायोग्राफी. तो ये है डिफरेंस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. तो गुलिवर कौन थे? एक सेलर थे. उनका क्या हुआ था? Was once caught in the land of giants.
तो क्या हुआ था, जाइंट्स का मतलब ह्यूज क्रिएचर्स, मतलब बड़े बड़े इंसान जो कि एकदम राक्षस जैसे दिखते हैं। तो क्या हुआ था, एक बार वो एक अनहोनी लैंड में पहुंच जाते, क्योंकि ये लोग सेलर थे और सेल करते करते वो वाटर के खोज में एक अनहोनी लैंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें सिर्फ ह्यूज क्रिएचर्स दिखते हैं, जाइंट्स दिखते हैं। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। और वहाँ पे उन्होंने उस लैंड में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है उनका। ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When he came to the land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to other. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. They carried a reaping hoop, which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. On the 16th June 1730 we discovered land. तो डिस्कवर का मतलब होता है टू फाइंड आउट। तो गुलिवर और उनके दोस्त एक नए लैंड पे पहुंच जाते हैं। कब? ये स्टोरी है 18th सेंचुरी का, यानी 16th जून 1730 में गुलिवर और उनके दोस्त एक नया लैंड को डिस्कवर करते हैं, यानी फाइंड करते हैं। वो वहां पे पहुंचते हैं। Our captain sent a dozen men with vessels for water. हमारे जो कप्तान थे, जो शिप के कप्तान थे, उन्होंने डजन का मतलब होता है 12, डजन का मतलब होता है 12, और यहाँ पे MEN मैन यूज किया गया है। मैन है प्लूरल और MAN होता है सिंगुलर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आदमी को भेजा गया है, इसलिए वहाँ पे मैन यूज किया गया है। तो उनके कप्तान ने 12 मैन को कहाँ पे भेजा? पानी लाने के लिए भेजा। और हर एक मैन को उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था? वेजल्स। वेजल्स यानी कंटेनर जिसमें पानी स्टोर करते हैं। इफ एनी कुड बी फाउंड, तो सारे 12 के 12 उतर गए शिप से वो बोट के मदद से आगे किनारे, और उस न्यू लैंड में वो पानी का तलाश कर रहे थे, क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा, उसको तो पी नहीं सकते। तो वो आगे न्यू लैंड में पानी की तलाश में कि कहीं पीने का पानी मिल जाए तो कलेक्ट करके वेजल्स में ले जाएंगे। When he came to land, we saw no river or spring. तो when he came to land, तो जब गुलिवर और उनके दोस्त उस नए से जगह पे पहुंचे, तो वहाँ पे उन्हें ना ही कोई नदी दिखा, ना ही स्प्रिंग,
स्प्रिंग इज अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जब वो नए जगह पे पहुंच गए, ना ही उन्हें नदी दिखा, ना ही कोई पानी का धारा दिखा, नॉर एनी इनहैबिटेंट्स, ना ही वहां पे उन्हें कोई लोग दिखे। इनहैबिटेंट्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, हम जिस जगह में रहते हैं हम उस जगह के इनहैबिटेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो उन एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट हो गया इनहैबिटेंट। सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो हमारे लिए हमारा सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं वो हम वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं। इनहैबिटेंट मतलब जो पर्टिकुलर एनिमल जिस जगह में रह सकता है वो उसका इनहैबिटेंट है। फिश के लिए वाटर उसका इनहैबिटेंट है। समझ आ रहा है? तो जब वो वहाँ पे पहुँचे, ना ही उन्हें नदी दिखा, ना ही कोई पानी का धारा दिखा, ना ही वहाँ पे उन्हें कोई लोग दिखे। I went on to explore। एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ जानना। क्योंकि नया जगह था तो गुलिवर वहाँ पे घूमने लगे उस जगह का पता लगाने के लिए, उस जगह को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानने के लिए। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। कंट्री का मतलब वो जो जगह जहाँ पे वो पहुँचे थे वो एकदम बैरन। बैरन का मतलब होता है सूखा। द प्लेस विच इज़ नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन। बैरन का मतलब ऐसा मिट्टी जो कि किसी भी प्रकार के वेजिटेशन को या क्रॉप को ग्रो करने के लिए सपोर्ट नहीं करता। और वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे उस लैंड में। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। क्रू का मतलब जो भी शिप में जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे थे उसी को क्रू कहा जाता है, उनके ग्रुप को क्रू कहा जाता है। तो वो जब पीछे मुड़े, जो भी इनके दोस्त थे, जो भी इनके क्रू मेंबर्स थे, वो क्या थे? When I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे सारे जितने भी क्रू मेंबर्स थे मुझे छोड़ के वो बोट में बैठ गए हैं और वो रोइंग कर रहे हैं। रोइंग मतलब अपना बोट को चला रहे हैं सी वाटर में। क्यों? वो बोट को रो कर रहे हैं। यहाँ पे शीप है और रो करते करते उनको शीप तक पहुँचना है, क्योंकि पानी लेने जब उतरे थे तो बोट से उतर के किनारे तक पहुँचे थे। अब वापस वो शिप के और बड़ी ही तेजी से अपने बोट को रो कर रहे हैं। क्यों रो कर रहे हैं? बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम। उनके पास पहुँचने से पहले मैंने देखा कि ये जब बोट को रो कर रहे हैं, एक बड़ा सा ह्यूज क्रिएचर, एक बहुत ही विशाल सा इंसान उनको फॉलो कर रहा है। उनको चलते चलते समुद्र में फॉलो कर रहा है एज फास्ट एज ही कुड। वो ह्यूज क्रिएचर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल रहा है। द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। जो समुद्र का पानी था वो तो बहुत गहरा होता है। वो समुद्र का पानी मात्र उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था। यानी सोचो कि वो इंसान कितना बड़ा होगा। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। ये जो मॉन्स्टर, राक्षस जैसे दिखने वाला बड़ा इंसान, जब वो बोट का एकदम तेजी से चलते चलते पीछा कर रहा था समुद्र में, वो उस बोट को ओवरटेक नहीं कर पाया। मतलब वो बोट तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि सारे एकदम तेजी से बोट को रो कर रहे थे। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। तो वो पहुंच नहीं पाया बोट तक। I turned back quickly and climbed up a steep hill। तो गुलिवर क्या करता है, एकदम डर के मारे वो फिर से टर्न बैक, वो फिर से पीछे मुड़ता है और वहां पे एक स्टीप हिल यानी एक छोटा सा स्लोपी हिल था और वहां पे वो चढ़ जाता है। जब वहां पे चढ़ता है तो क्या होता है, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। तो वो जिस हिल पे चढ़ता है, स्लोपी हिल पे, वहां पे क्या था, फील्ड्स थे। कौन से क्रॉप लगे हुए थे वहां पे? एक तो बार्ली और एक था कॉर्न यानी मक्का वहां पे लगा हुआ था। एक साइड पे, ईदर साइड मतलब एक साइड पे आपका बार्ली लगा हुआ था और दूसरे साइड पे आपका कॉर्न लगा हुआ था। ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। और कॉर्न जो था वहां पे कितना लंबा था उसका हाइट? कॉर्न फील्ड का जो कॉर्न के क्रॉप्स थे उनका हाइट था 40 फीट। 1 फीट होता है आपका 12 इंचेस
यानी 40 फीट हो गया 40 इंटू 12 इंचेस यानी 480 इंचेस, यानी इतने बड़े बड़े कॉर्न के क्रॉप्स थे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। फेंस का मतलब होता है फेंसिंग, एक बैरियर। तो एक फील्ड से, एक साइड था बार्ली और एक साइड था कॉर्न, तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड को पास होने के लिए क्या था, एक मतलब फेंस लगा दिए थे, तार लगा दिए थे एज अ बैरियर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। तो वो जब स्लोपी हिल पे चढ़ गए, कुछ हाइट तक चढ़ने के बाद स्टेप्स थे और उनको इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्लाइंब द स्टेप्स, और वो सीढ़ियों को, वो स्टेप्स को चढ़ना गुलिवर के लिए इसीलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर एक स्टेप का हाइट है 6 फीट यानी 6 इंटू 12 इंचेस, यानी हर एक स्टेप का हाइट है 72 इंचेस। तो गुलिवर को ये स्टेप्स चढ़ना मुश्किल हो रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। तो गुलिवर अब क्या करने लगे, जो हेज का मतलब होता है फेंस फॉर्म्ड बाय बुशेस और श्रब्स, यानी बैरियर जो होता है, बैरियर या फेंस जो फॉर्म होता है झाड़ियों के मदद से या श्रब्स के मदद से। तो गुलिवर क्या करने लगते हैं कि वो आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द, तो गुलिवर क्या करने लगते, झाड़ियों के अंदर घुसने की कोशिश करते, क्योंकि ना ही वो स्टेप्स चढ़ पाएंगे ना ही वो फेंस के थ्रू घुस पाएंगे, तो वो झाड़ियों के बीच घुसने की कोशिश कर रहे थे। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, गुलिवर ने सडनली देखा कि उनके बगल वाले फील्ड में, नेक्स्ट फील्ड में, वहाँ का एक जाइंट इनहैबिटेंट, वहाँ का एक ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज इंसान चल चल के आ रहा है, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, ये फेंस की ओर एकदम चल चल के आ रहा है। ही वॉज ऑफ सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, और उसका हाइट भी इतना ही था जो पहले उसने एक इनहैबिटेंट को देखा था जो बोट को चेस कर रहा था सी वाटर में। इस इंसान का हाइट भी उतना ही ज्यादा लंबा है। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट। गुलिवर बोलते हैं कि मुझे इन राक्षस जैसे इंसानों को देखकर एकदम, आई वॉज स्टक विथ अटमोस्ट फियर, मैं एकदम चौंक गया, मैं एकदम डर गया। फियर मतलब डर गया एंड एस्टोनिशमेंट मतलब मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं है। एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और उस बड़े से इंसान को देखते हुए ये भागने लगे गुलिवर, मतलब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे, खुद को उसके नजरों से छुपाने के लिए। He called in a voice much louder than trumpet. ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो ह्यूज क्रिएचर था उसने जब आवाज लगाया तो उसका आवाज एकदम बहुत ज्यादा ऊंचा था, मच लाउडर देन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तुरही से भी ज्यादा ऊंचा उसका आवाज था। इट साउंडेड लाइक थंडर, ऐसे लग रहा था कि, मतलब थंडर यानी गर्जन, मेघों का गर्जन होता है ना, उसको थंडर बोलते हैं। ऐसे लग रहा था कि वहां पे मतलब थंडर हो रहा है, गर्जन हो रहा है। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. उसके बाद गुलिवर ने उसके जैसे और 7 राक्षस जैसे इंसान देखे। 7 monsters आ रहे थे, राक्षस जैसे बड़े बड़े ह्यूज क्रिएचर्स आ रहे थे टू रीप द कॉर्न। रीप का मतलब होता है कॉर्न हो चुका है और उसको हार्वेस्ट करना है, तो कॉर्न को वो रीप करने आ रहे थे। दे कैरीड अ रीपिंग हुक। रीपिंग हुक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये वाला शेप में होता है और उसके हैंडल को पकड़ के आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। उसका शेप एकदम क्वेश्चन मार्क के जैसा ऐसा होता है। तो दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, और वो रीपिंग हुक एकदम बहुत ही बड़ा था क्योंकि इंसानों का साइज वहाँ पे बड़ा है। कॉर्न फील्ड एकदम 40 फीट का हाइट में है, तो रीपिंग हुक भी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। When one of the reapers approached where I lay hidden, तो जिस झाड़ी के अंदर यहाँ वहाँ मतलब
भागते हुए गुलिवर छुप गए थे, एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रिएचर आके वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे मैं छुपा था। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। तो उसको देखते ही मुझे इतना डर लगा, गुलिवर को इतना डर लगा उस क्रिएचर को देख के। वो बोल रहा है कि आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। तो गुलिवर एकदम चीखने लगे, जितना जोर से हो सके उतना जोर से चीखने लगे। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger. वो जो जाइंट क्रिएचर था उसने फसल की कटौती करना बंद कर दिया and picked me up between his thumb and forefinger. वो अपना थंब और फोरफिंगर यानी इंडेक्स फिंगर यूज करते हुए मुझे नीचे से ऐसे उठा लिए and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. और गुलिवर को अपना थंब और फोर फिंगर से उठाने के बाद अपने आँखों के सामने उसको रखे और उस राक्षस, उस ह्यूज क्रिएचर का हाइट कितना था? 60 फीट अबाउ दी ग्राउंड। अभी गुलिवर हवा में टंगे हुए हैं और वो कितने ऊपर टंगे हुए हैं? 60 फीट, यानी 60 इंटू 12 720 इंचेस के हाइट पे गुलिवर टंगे हुए हैं हवा में। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. तो वो राक्षस जो है, राक्षस जैसा ह्यूज क्रिएचर गुलिवर को लेके एकदम आंखों के सामने रखता है। क्यों? उसको ये प्राणी बड़ा ही अजीब लगता है और एकदम गुलिवर को पहचानने के लिए वो क्या करता है? गुलिवर को एकदम आंखों के पास में लाता है और उसके मुंह पे फूंक मारता है, क्योंकि गुलिवर के चेहरे पे उसके बाल गिर गए थे और बाल हटने से वो मॉन्स्टर इंसान इसके चेहरे को अच्छे से देख पाएंगे। तो उन्होंने यूं उठाया, गुलिवर को एकदम आंखों के सामने लाया और यूं फूंक मारा उनके चेहरे पे। He called his friends and gently placed me on the ground. उस बड़े से जाइंट इंसान ने अपने सारे फार्मर दोस्तों को बुलाया और गुलिवर को एकदम जेंटली, आराम से जमीन पे यूं नीचे रख दिया। Let us learn the remaining part of the prose Gulliver's travel in detail. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept, dreaming of my home, my wife, and my children. They all sat on the ground to take a good look at me. तो अब तक क्या हुआ था? जितने भी जाइंट फार्मर्स थे वो सभी इकट्ठा हो गए थे ये फार्मर के पास, जिन्होंने फोर फिंगर और थंब का यूज करते हुए गुलिवर को उठाया था। और इन्होंने गुलिवर को अभी ग्राउंड पे रख दिया है। और बाकी जितने भी 7 मॉन्स्टर फार्मर्स थे वो क्या किए? They all sat on the ground to take a good look at me. गुलिवर को एकदम बीच में रख दिए और एकदम उन्हें घेर लिए, गुलिवर को घेर लिए। All sat on ground, सभी बैठ गए और to take a good look at me, और देख रहे हैं, अरे इतना छोटा इंसान कहाँ से आ गया हमारे लैंड पे? And took a good look at me, अच्छे से देख रहे हैं किसको? गुलिवर को। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. तो गुलिवर क्या करते हैं?
सारे फार्मर्स नीचे बैठे हुए थे और गुलिवर भी ग्राउंड पे थे। तो गुलिवर ने क्या किया, थोड़ा सा बैकवर्ड गए, थोड़ा सा फॉरवर्ड गए। उसके बाद उन्होंने अपने सिर पे से जो हैट था, टोपी था, उसको उन्होंने उतारा एंड टुक एंड मेड ए लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स। थोड़ा सा बैकवर्ड गए, थोड़ा सा सामने की ओर गए, उन्होंने अपना हैट उतारा और ऐसे उन्होंने उन्हें रेस्पेक्ट दिया, यानी बो किया, यानी टू गिव रेस्पेक्ट टू समवन। I tried to speak to them loudly in several languages. गुलिवर ग्राउंड पे रहते हुए बहुत सारे भाषाओं की प्रयोग किया। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. तो वो कभी भी कुछ बोलने की कोशिश करते, वो जो फार्मर जिन्होंने गुलिवर को पहले पिक किया था, वो क्या करते, used to place the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. अभी गुलिवर ग्राउंड पे है, तो वही फार्मर जिन्होंने इन्हें पिक किया था, वो फार्मर एकदम कान एकदम पास में ला रहे हैं गुलिवर के भाषा को सुनने के लिए, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table. ये जो फार्मर थे, ये जो किसान थे, इन्होंने गुलिवर को अपने ही घर में ले लिया, जिन्होंने इन्हें पिक किया था फोर फिंगर और थंब को यूज़ करते हुए, और लेने के बाद कुछ डिस्टेंस में डाइनिंग टेबल के ऊपर गुलिवर को उन्होंने अच्छे से जेंटली प्लेस कर दिया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। और वो डाइनिंग टेबल का हाइट कितना था, 30 feet हाइट फ्रॉम द फ्लोर, मतलब ज़मीन से 30 feet के ऊंचाई पे था, यानी 1 feet 12 inches, 30 feet is equal to 12 into 30, यानी 360 inches के हाइट पे था वो। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. तो फार्मर को एक कंटेनर में डिनर लाया गया, रात का भोजन लाया गया, और वो जो प्लेट का डायामीटर था, ठीक है, वो प्लेट का पूरा जो डायामीटर था वो था 10 feet, 10 feet या 1 feet 12 inches, 10 into 12 यानी 120 inches का वो प्लेट था, और उसका पूरा लंबाई एकदम 10 feet था। The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. तो फार्मर्स वाइफ ने डिनर में, यानी रात के भोजन में, अभी गुलिवर एकदम डाइनिंग टेबल के बीच में है, तो उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस किए, क्रम्बल यानी छोटे छोटे टुकड़े किए, और गुलिवर के सामने वो ब्रेड पीसेस को डाइनिंग टेबल पे रख दिए। गुलिवर वो खा रहे थे। ऑन द मिडिल ऑफ द डिनर, जब वो खा रहे थे, बीच में पीछे से एक आवाज़ आता है, एक नॉइस आता है। इट वॉज द पुर्रिंग ऑफ ए कैट। तो वो किसका आवाज़ था, एक बिल्ली का आवाज़ था, जो कि अपना आवाज़ निकाल रहा था, मियाओ मियाओ का आवाज़। दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। और ये जो बिल्ली था, हमारे जो एरिया में जो ऑक्स होते हैं, ऑक्स यानी बेल होते हैं, हमारे जगह पे जो बेल होते हैं, उस बेल से इसका जो साइज़ है 10 times ज़्यादा है। इतना बड़ा कैट डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हुए आवाज़ निकाल रहा था, पुरिंग यानी मियाओ मियाओ का आवाज़ निकाल रहा था। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम। ये जो फार्मर की जो पत्नी है, उसको स्ट्रोक कर रही थी, यानी पैट करना, सहलाना, यूं यूं सहला रही थी। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. उसके बाद फार्मर का 1 साल का छोटा सा बच्चा एंटर करता है, किसके साथ, एक लेडी उसको गोद में उठा के लेके आती है। तो अभी डाइनिंग टेबल के पास कौन कौन है, गुलिवर एकदम बीच में डिनर खा रहे हैं, और गुलिवर के ठीक पीछे 10 times बड़ा कैट है, जो कि ऑक्स से 10 times बड़ा है, वो आवाज़ निकाल रहा है। फार्मर की वाइफ है, जो कि छोटे छोटे पीसेस करके गुलिवर को ब्रेड खिला रही है। एक लेडी है, जो फार्मर के
बच्चे को गोद में लेके आई है। तो डाइनिंग टेबल के पास टोटली 5 मेंबर्स हैं अभी। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. तो वो जो छोटा सा फार्मर का बेबी था, वो गुलिवर को देखते ही तुरंत उन्हें उठा लिया। ग्रैब यानी फटाक से उठाया। उसे उठाकर, गुलिवर को उठाकर वो इमीडिएटली अपने मुंह में डालने वाला था। किसको मुंह में डालने वाला था? गुलिवर के सिर को अपने मुंह में डालने वाला था। I shouted so loudly that the baby dropped me. तो डर के मारे गुलिवर ने इतना जोर से चिल्लाया कि वो जो बच्चा था गुलिवर को ऐसे खाने वाला था, और जब गुलिवर ने चिल्लाया उसने ऐसे ड्रॉप कर दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. तो गुलिवर बोल रहे थे कि अगर ये बच्चे की माँ, एप्रॉन यानी हम क्लोथ्स के ऊपर एक गारमेंट पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जब हम किचन में वर्क करते हैं वो आग से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही बेबी ने ड्रॉप किया, बेबी के मदर ने एप्रॉन लेके गुलिवर को कैच कर लिया उस एप्रॉन में, वरना गुलिवर का गर्दन टूट जाता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, और वो औरत इतनी ज़्यादा काइंड थी। लेटर उस फार्मर की वाइफ ने उनके खुद से एक बड़ा बेड पे गुलिवर को सुला दिया। एंड कवर्ड मी विथ ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और जो हैंडकरचीफ होता है वाइट कलर का, उस वाइट और एकदम साफ हैंडकरचीफ से गुलिवर को उन्होंने कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और गुलिवर सो गए और सोते हुए वो सपने में अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, अपने घर के बारे में सोच रहे थे, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे। So now let us learn some of the new words which we came across while learning this prose. Bellowing, very loud noise, यानी बहुत ही ऊंचा आवाज़। Bellowing मतलब बहुत ही ऊंचा आवाज़। Inhabitant, occupants, जो जानवर या जो इंसान जिस जगह पे रहते हैं वो वहाँ के inhabitants होते हैं। Like fish is the inhabitant of water. Birds, wild birds and animals are inhabitants of forest. तो मैं कोरापुट की inhabitant हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं यहाँ की inhabitant हूँ। जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो वहाँ के inhabitant है, यानी जिस प्लेस में हम रहते हैं, occupants. Barren land with no vegetation. Barren land का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, वहाँ पे वेजिटेशन होता नहीं है। लैंड नॉट सूटेबल फॉर वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन को वो लैंड, वो मिट्टी, वहाँ का मिट्टी सपोर्ट नहीं करता। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड, मतलब अचानक से चौंक जाना। क्रम्बल, ब्रोकन इनटू पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़े करना। ग्रैब, पिक सडनली, ग्रैब मतलब फटाक से किसी चीज़ को उठाना। रीपिंग हुप, ए हैंड इम्प्लीमेंट विथ अ हुक शेप्ड ब्लेड यूज्ड इन हार्वेस्टिंग कटिंग। तो रीपिंग हुक का मतलब होता है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे रहता है देखने के लिए, ऐसे रहता है, ऐसे, ये है हैंडल और ये जो ऊपर वाला पार्ट एकदम हुक के जैसे रहता है। तो ए हैंड इम्प्लीमेंट विथ अ हुक शेप्ड ब्लेड, तो एक हैंड इम्प्लीमेंट है जिसका ब्लेड का शेप कैसा है, जो काटने के लिए है, वो ब्लेड का शेप है एकदम हुक जैसा। यूज्ड इन हार्वेस्टिंग कटिंग, और उसको यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। फोर फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, ये उंगली जिससे हम हर एक को इंडिकेट करते हैं ना, इसको फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर और इंडिकेटिंग फिंगर बोलते हैं। बो, बेंड एज साइन ऑफ रेस्पेक्ट और ग्रीटिंग, बो का यानी यू झुकना, एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट या किसी को रेस्पेक्ट देते हुए, ग्रीटिंग देते हुए आप झुकते हो। एप्रॉन, गारमेंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फ्रंट ऑफ वंस क्लॉथ, गारमेंट फ्रंट पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग पहनते हैं। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? जब हम किचन में काम करते हैं, आग से वो हमें प्रोटेक्शन देता है। क्रम्बल, टीयर इनटू स्मॉल पीसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोज Gulliver's Travels, which is adapted from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. If you get any value from this video, please like it. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest notifications related to educational content in
Hindi, English, Odia and Bengali languages. Until then, keep learning, keep sharing, take care and thank you.